Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Ali Baz Kazmi, and today we're gonna discuss net metering requirements and procedures, specifically in Pakistan. A little bit about my introduction. I'm assistant professor in electrical power engineering department in USPK since 2017 to this very day. My area of research is smart distribution network, planning, scheduling, smart grids, and multi-grids, virtual power plants, etc. I have done my PhD in electrical power engineering from South Korea, SKK University, and I'm UATN. Okay, let's start. Regarding the contents of presentation, it goes through introduction, net or reverse metering as we call it, and procedures involved and the issues at hand as research dimensions. So we will start with the introduction, and before the introduction, as a part of introduction, I would like to go through the history of electrical grid, which basically started in 1880s. Initially, the initial manifestation was in form of telegraph, and later in 1880s, the Edison introduced that bulb street DC grid and the microgrid that is very much in demand right now, and it is a core research dimension nowadays. It was used to be standard in 1882, so it's not a new thing. It's an old thing, but after the war of currents that was won by Tesla, so the AC system that got prevalent to this very day, which is at our hand. So this is the basic introduction. The very first transmission line was 2.3 kV, 1893. Now we have got 1000 kV transmission lines as well. So it basically starts with that 2.3 kV. So in early 1900s, those private utility supplies, they basically monopolize the very hierarchical system that is at hand right now, which is generation, transmission, distribution, and the very utilization. And in the utilization and slash distribution side, this very net metering is the thing that we will gonna discuss today. So a quick review of electric power system of Pakistan. This is the total capacity. Installed capacity is nowadays it's more than 42 gigawatts. But our energy mix is dominated by thermal power mostly. Thermal power. We have got 50 and 220 kV grids, which is the primary transmission, second 132, and basically also 66 and 30. And in 21, that HVDC just November 2020. So right now we have got 10 discos or any system is basically it gives the very philosophies that each segment of grid matters, whether it's consumer or consumer side of the utilization or generation side of energy system management. So let's start with the reverse or net metering. So these two terms are basically prevalent, net metering or reverse metering. Basically, uh, the cost of sending, the cost of generating and sending power unit to a consumer, it's a big thing. And with increasing population, increasing load demands, it was getting very cumbersome for the grid to send electricity to everyone. And you people might be witness to the conditions that there was used to be a very large amount of load shedding. So being nation, we basically initially we start with the UPS, and when we tried to tap this solar energy system, so it was very much a cost economic proposition for the consumer. Basically, the main thing was to enable consumer to use this technology for his and the grid's benefit. So the WAPDA, or what I say, the NAPRA and the distribution companies and AEDB, they took the initiative to encourage the
people to install their this system, so that the burden of the grid on the grid may reduce. So as you all know that the solar system, its abundant Pakistan is very much blessed with this solar energy. So we all know that there is we have panels, inverters, distribution boxes, utility meters, and the utility grid. So this utility grid, which is was used to be only the unidirectional, if we have generation and replace it with a bidirectional meter, so that power can also go to the grid rather than only coming to into the consumer premises. So, for example, if you are drawing 500 units and you produce 100 units, so just on the basic scale of understanding, the net bill will be 500 minus 100. So you have got a reduction in bill. Short for that. Previously, we used to have UPS, but UPS was the problem with that was that it is still a non-linear load, and it contributes to 15 to 20% of your consumer bill, because it takes electricity from WAPDA, and if you make the basket price of all that consumed electricity during off peak and peak hours, so it gives a big dent on the consumer pocket. So uh, moving on with this, now net metering in Pakistan. Now it is a billing mechanism that credits solar energy system owners for power that they add to the grid, that they contribute to the grid. Basically, the time of the solar irradiance is that you can only contribute to the tariff 2, that is a regular tariff. So on the off peak time, you cannot contribute to that. So only your normal units can be credited. However, with the new advent of new technologies, means the bifacial panels, which can produce electricity in night due to difference in temperature, it's a small one. So you can also contribute electricity during the peak times as well. But it's not that much prevalent right now. It will soon be in the market. So, for example, if a private client has a PV framework, it might create more power than his home uses during the sunlight. Now the load is less and the generation is more. What he should do, either curtail it or let it go. So the other thing is, why not net meter that system and use it in reverse, give it to the system and take credit out of that. That's the philosophy behind that. And during evening or different periods where the home power utilized surpasses the system yield, we can net meter it. Now, as far as this thing is concerned, you are familiar that either it's off grid or it's on grid or it's hybrid system. If you are working with on grid, all the units are generated and moved to the grid. That's the first thing. Hybrid, first use it first, and additional units will go to the grid. And the off grid is there is no net metering and use it locally. So clients are only charged for the net energy utility. The advanced digital meters or green meters, as you can see, if you wait a second, I better. Now this is the solar panel. That's my that's the inverter. That's the household. That is the meter, and either it's giving electricity to the grid or taking electricity. It's now the bidirectional flow of electricity. Now, if you see this panel, this irradiance, we consider it can be of any type. Usually, the certified panels of Canadian Solar or Longi Solar, those panels are basically vetted by the ADB. So, better use those panels uh, for installation. So, this trapment of electricity is inverted from DC to AC for the home use, because most of our devices are basically AC in nature. Also, our grid is AC in nature. So this bidirectional meter will measure the energy, and the excess energy will move to the grid. As per example, so the advanced digital metering that you are looking right now, that my cursor is basically showing, is that both it the power that the consumer consumes or it generates, it will make a net out of it, and
send that electricity or consume that electricity as per the requirement. So net metering permits clients to produce their power effectively and efficiently. Also, due to this, the losses can be reduced because, for example, if the X amount of electricity running through the service main comes to you, it is subjected to various losses. Now here the power is directly generated close to the load center and the losses are comparatively less. So you can do your math how this thing works efficiently for that matter. So I will discuss it later, but I will just mention it one by one that the step of net metering are: number one, solar system installation; number two, preparation of application, and I will show the application as well. Number three, inspection and NOC, non-objection certificate issuance. Number four, signing of agreement. Number five, allotment of generation license. And number six, activation of net meter slash green meter. Now the process is very simple, but it's easier said than done, I will tell you. Anyways, uh, the advantages attributed to the net metering basically encapsulates that you can produce your own electricity and reduce your overall bill. It reduces the burden on your pocket because in Pakistan, well, you call it net metering, but it results in one of its manifestation is net billing. So the units you generate, usually you generate the units, but WAPDA or sorry NEPRA or ISCO take it at a low price, and the overall price that they make, they sell at a high price. So overall, you have to give the bill. So it reduced, but overall the reduction of there is a reduction of bill, and it's less on your pocket. So it relieves the burden on the grid because now if a person is generating its own electricity close to the load center, so it will not stress the grid for extra electricity. So that's another win-win situation. Also, as far as sustainable development goals are concerned, this net metering contributes to SDG 7, that is access to electricity, SDG 11, sustainable cities and communities, and SDG 13, that is climate change, because the very electricity that you are using is totally renewable and you are not using any fossil fuel kind of electricity. So it also contributes to this SDG 13, climate change. Then you can sell and earn money in the deregulated electrical market that is fabricated, that has been formulated by PBIB and CPPA. So in short, in future, for example, if there will be multiple stakeholders, for example, you can also buy or sell electricity to your neighbor rather than to WAPDA or any whichever will give you a good rate, a win-win situation. Uh, you can capitalize it. So it's alternative to UPS. I have, as I before mentioned, that it contributes to your bill as per its size and charging mechanism. For example, it if you have got 600 watt UPS, it can contribute to 10% of your total bill of an average household in Pakistan. And if you have got 1500 watt or 2 kilowatt of UPS, it can contribute to around 20%. So as you, because reason is that it charges from the grid, it causes burden on the grid, and that burden is indirectly contributing to the fossil fuel emissions because 65% of your generation is thermal dominated. And also the basket price will be high because it will increase the amount of bill that you have to pay. And optimized use can reduce the overall burden on both grid and the consumer. So as far as power system, PV system is concerned, the very first requirement is a PV system that comes is in various sizes. So if you talk about the capacity, the smallest one, even you can also use 1.2 kilowatt is also available in the market. But for the all practical reasons, if we talk about net metering, we basically consider from 3 to onwards. Now, as far as 3 kilowatt is concerned, it moves from 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, up till 35. So, if you consider the electrical units in kilowatt hours produced
per month. So if you consider the sunless days, because usually the consultants, the solar consultants, they give say that you can generate 320 to 360 units at 3 kilowatt. But if you consider the sunless days or partial clouding condition or that kind of thing, so the average that basically approximately comes to you, it's 325 for 3 kilowatt system. Basically this value has been taken from various, I've taken it from various sources, and it's verified values. You can even use it for that matter. So for 5 kilowatt it's 550 units, for 10 kilowatts it's 1100 units. For example, if I have 5.4 kilowatt system installed at my home, and my units, if my units are 700 or 800, and I generate five or let's do a simple math. If I consume 750 units and I generate 550 units, so 750 minus 550, I will only have to pay for the 200 units plus fuel adjustment charges plus the extra GST and other cost of electricity. So the whole bill that comes to me, at least the magnitude of that will be reduced to one fourth or less for that matter. And as you move ahead, uh, you have more and more power units that can be generated. This is the graph that is basically plotted on these values, that from 3 to 35 kilowatt, this is the amount of units you can produce with PV system. But that thing is also subjected to the area requirement, land availability, azimuthal angle, the tilt, south facing, all that things also considered. If you have you haven't got any space for that matter, so you cannot install large amount of PVs, but the optimal one can be installed in one way or the other. So uh, what can you run? Now the question arises, what can you run on various systems at acceptable efficiency? If you have got 3 kilowatt system and you have got 325 unit, you can produce 325 units. The appliances that can be run on that will be 3 fan, 7 lights, and I'm talking about LED lights, not tube lights or other halogen lights. That's LED lights, 5 watt or 10 watt kind of things, not sodium blast kind of thing. You can run a refrigerator, washing machine, one TV. So these package can be run on 3 kilowatt system. Then you have got 5 kilowatt system. If you generate 550 units, you can run 5 fans, 10 lights, one AC, and that AC must be DC inverter, because the DC inverter takes 1.3 units at the most, whereas your other technologies can take about 3 unit, 4 unit, 5 unit, and the single unit AC that was used to be known in the past uh, by the name of AC wala dabba jo hai, that used to take around 5 units. So it's a big amount. So one refrigerator can be run on that, one washing machine, one TV. Similarly, for 10 kilowatt system, you can run 10 you can run 10 fans, 15 lights, two ACs, and they must be DC inverter. Kindly consider that. And one water pump, one refrigerator, two washing machines, and one TV. If I move directly to the 35, on 35 kilowatt system, you can run 35 fans, 60 lights, 6 ACs, 2 irons, 6 refrigerators, 4 water pumps, 7 TVs, and 3 washing machines. So as you can see, as you increase the number of units, so is the amount of appliances that can be run on the system will increase. Now it literally depends on which kind of system you have installed in your premises and what kind of appliances you have at your hand that you can use with your respective out of those respective systems. But make sure 10 kilowatt system with storage is feasible. Without storage, 35 is fine. But if you are working with the storage will literally increase your cost, overall cost. Anyways, let's move to the prices. Now usually uh, the people will offer you two kind of prices. One price will be with storage, one will be without storage, and these values that I have mentioned over here,
they are without GST and withholding tax. The GST is 17% and withholding is 4.5%. If you will add that to calculation, it will just multiply it with 1.21 each, both columns. Simple as this. So if I have to install uh, this system, so it will at least require 4 lakh rupees. And if I use storage, now the storage usually in use, there are specific batteries for the PV systems that are deep cycle batteries of either Volta or there are many batteries specifically made for that. So the cost that has been further added to it is due to the connections and the wires that will be extended up till inverter. So the cost of the wire has also been increased many folds. So that recent cost has been put into these prices with the storage. So from point 4, if you have to use it with the price, that is 550 if you use it with the storage. Similarly, for 5 kilowatt, it was used without storage, it's 65, 6 lakh 50,000, and with storage, with 4 batteries, it's 9 lakh 5,000. जी ओके 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 अच्छा जी I've been told that I have to include some Urdu into this as well. So अच्छा, तो ये है जी कि 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए आपको अगर 1000 यूनिट बन रहा है तो 11 लाख रुपए चाहिए विदाउट स्टोरेज। विद स्टोरेज 8 बैटरियों के साथ यही चीज़ 17 लाख है। और जैसे जैसे आपकी किलो वाटेज बढ़ना शुरू होगी, यूनिट्स आपके ज़्यादा होंगे, उसी हिसाब से अगर आप देखें 35 किलोवाट के सिस्टम के लिए 32,50,000 है विदाउट स्टोरेज। विद स्टोरेज यही चीज़ जो है तकरीबन 55 लाख की हो जाएगी 30 बैटरीज के साथ। सो जितना आप ये बैटरी, ये आर्किलीज हील है इस सिस्टम की, जैसे आप स्टोरेज बढ़ाना शुरू कर देंगे आपका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। अब आप अगर देखें, अगर 10 किलोवाट तक के सिस्टम तक देखें, यहाँ तक फिर भी थोड़ा बहुत फिजिबल है, लेकिन आफ्टर 15 किलोवाट it does not remain that much feasible, right? So I'll move to the next slide. तो यूजुअली पीपल इंस्टॉल अप टू 20 और 25 किलोवाट ऑल्सो। अभी जो नेपरा ने डायरेक्ट लाइसेंस की हुई है तो वो 25 एंड अबव अब उनके पास डायरेक्ट जाता है, और 25 से बिलो जो है वो यूटिलिटीज के पास जाता है। तो वी कंसिडर दैट कि हमारे पास 20 तक का सिस्टम है अगर हमने यूज़ करना है। तो अब इसका जो किलो वाटेज है, ये इसका विदाउट स्टोरेज प्राइस अभी कंसिडर किया जा रहा है। ये इसकी एनुअल यानी कि एक साल में कितने यूनिट्स जनरेट करेगा और एक्चुअली कितने आते हैं। एक्चुअली ये इस चीज़ के कि जो वेदर इंटरमिटेंसी है उसको अगर आप कंसिडर करें तो आपके पास यूनिट हमेशा कम आएंगे। अब इस पे क्या होता है कि एक दिन में कितने यूनिट हैं उसको सीधा सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, या जो एक दिन में यूनिट आते हैं उसको आप 8760 365 दिनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर तो ये यूनिट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें आपके बारिश के दिन भी होते हैं, आंधी भी होती है, बहुत सी इस तरह की मामलात होते हैं, तो ओवरऑल जो आपके बादल आ जाते हैं तो ये आपके पास यूनिट्स प्रैक्टिकली थोड़े कम बनते हैं। तो अगर आप देखें जैसे जैसे आप ये 10 किलोवाट के सिस्टम पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ये जरा ऑप्टिमल करके है। 10 किलोवाट इज मच बेटर फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड, अगर सब्जेक्टेड टू अगर आपका लोड 12 किलोवाट एंड अबव सैंक्शन लोड है। इफ यू गॉट 8 किलोवाट सैंक्शन लोड, आपको 5 किलोवाट का सिस्टम इशू हो सकता है, क्योंकि आपको अपना जब नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे, मैं अभी प्रियम्बल बता रहा हूँ कि आपको अपना लोड पहले बढ़ाना पड़ता है। मीन्स इनिशियली आपका लोड था 5 किलोवाट, यू हैव टू इंक्रीज इट अप टू 8 किलोवाट, फिर आपको 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने की इजाजत मिलेगी। इस तरह 10 किलोवाट का लगाना है तो पहले आप 12 किलोवाट करें, फिर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम होगा। यूजुअली जो डिफरेंस होता है 12 या 15 किलोवाट तक होता है। ये मीन्स कि यूजुअली सिस्टम को 70% तक का मार्जिन दिया जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मेरे घर में 8 किलोवाट का सिस्टम है और 5.4 का मेरे पास लगा हुआ है सिस्टम, तो अराउंड 65 to 70, यानी कि आपका लोड और उसके दरमियान तकरीबन
आपके पास 30 से 35% का आपका लोड कंपैरेटिवली सैंक्शन लोड 30 to 35% सैंक्शन लोड ज्यादा होना चाहिए। बेशक आप उसके बाद इंक्रीज करते जाएं इसको डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन यू हैव टू टेक द परमिशन। आप वो दूसरे तरीके से ना कीजिएगा कि आपने पहले इंस्टॉल कर दिया 10 किलोवाट और खामोशी से आपने 2 किलोवाट और इंस्टॉल कर दिया, तो वो मामला खराब भी हो सकते हैं उस पर और भी ये एक और भी आर्कलीज हील है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप ये देखें प्राइसेस विदाउट स्टोरेज और प्राइसेस विद स्टोरेज, दैट्स अ ह्यूमंगस डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एज यू कैन सी। सो अगर आप देखें तो ये आपके पास सिस्टम यहाँ तक फिर भी फिजिबल रहता है with without storage. After that it doesn't remain that much feasible. Now ये expectation है जो आपको यूनिट्स निकल सकते हैं, ये रियलिटी है जो एक्चुअल यूनिट एज पर कंडीशंस निकलते हैं। चूंकि आई हैव कंसिडर्ड द आइस्को रीजन, इस्लामाबाद का रीजन मैंने कंसिडर किया, सो ये तमाम चीज़ें इस्लामाबाद के हिसाब से हैं वन वे और द अदर किसी हद तक। सो अब नाउ क्वेश्चन कम्स के पे बैक कितने अरसे में होगा। पे बैक मीन्स आज आप इतना पैसा लगा रहे हैं, आपको कितने अरसे बाद पे बैक होगा, ये मैं आपको बताता हूँ आइडली क्या होता है और एक्चुअली क्या होता है। सो अगर सेविंग्स हैं पर ईयर के हिसाब से, अब एक्सपेक्टेशन आपकी होती है, इफ यू फॉलो दिस ब्लू लाइन, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट कि ये आपके पास ज़्यादा जनरेट होगी, ज़्यादा पैसा बनेगा और क्विकली पे बैक होगा। बट रियलिटी क्या होती है, आपके पास कम बन रही होती है इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिवली इफ यू कंसीडर ऑल दैट थिंग। प्लस क्या होता है कि जब आपका मीटर जब तक नहीं लगेगा उस वक्त तक आपकी नेट मीटरिंग शुरू नहीं होगी। जब आपका मीटर लग जाएगा ये जो है ना मीटर चेंज ऑर्डर, एमसीओ उसको कहते हैं, एमसीओ जब से होता है उसके बाद से आपकी यूनिटें काउंट होती हैं। अक्सर 4 महीने 5 महीने का डिले आ जाता है, तो वही चीज़ जो 4 साल में आपकी पे बैक होनी है वही चीज़ प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4.5 5 साल में जाके पे बैक होती है। ठीक है जी। इसी तरह ये आपके पास है। अब जब ज्यादा जनरेट होगा तो इफ यू सी द ब्लू लाइन, ज्यादा जनरेट होगा आपकी एक्सपेक्टेशन है क्विकली पे बैक होगा, लेकिन कम जनरेशन की वजह से पे बैक ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेशन में एक्सपेक्टेशन यूनिट प्राइस यू कंसिडर दैट इट इज 20 रुपीज पी के आर, क्योंकि हमारा जो ऑफ पीक यूनिट है ये जो आइस्को का जो मुझे ये पिछले बिल में आया था दैट वाज 18 ऑफ पीक 24 एट पीक प्राइस। बट फिर इन्होंने ₹1.55 कोई बिजली की यूनिट बढ़ा दी है। सो आई हैव इंक्लूडेड दैट कि अगर 19.55 है ऑफ पीक और पीक यूनिट है 25.55, अब रियलिटी यूनिट प्राइस आपके पास ₹9.25 है। दैट इज द प्राइस एट विच वापडा विल आइस्को विल बाय फ्रॉम यू और नेपरा विल बाय फ्रॉम यू, राइट। अब जब जिस दौर में नेट मीटिंग शुरू हुई थी उस वक्त जो ऑफ पीक का प्राइस था वो ₹10 का था और ये रियलिटी प्राइस ये वाली थी लेस प्राइस। अब वही यूनिट 18 या ₹19 का हो गया, वो लेस प्राइस 9.25 ही है। तो अब आपका पे बैक पीरियड कंपैरेटिवली फिर बढ़ना चाहिए इसकी वजह से। जो अब आप कह रहे हैं कि बिजली की प्राइस बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, ये सब उसकी वजह से आपका पे बैक बढ़ना शुरू हो गया और आपकी जो है रिकवरी कम हो रही है फॉर दैट मैटर। सो प्रोसीजर क्या है जी, ये तो वो होगी जी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। नाउ वी कम टू द रियल टॉपिक कि जी प्रोसीजर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। जैसे आई बिफोर मेंशन कि सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन होगी। अब एडीबी ने जो है ना फर्म्स को लाइसेंस दिए होते हैं। अब 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। तो इनको ज्यादातर लाइसेंस दिए जाते हैं। एडीबी ने भी कुछ खास कंपनीज है जिनको लाइसेंस दिए गए हैं, लेकिन एक मेल प्रैक्टिस ये है कि वो जो कंपनीज हैं वो अपने लाइसेंस फर्दर दूसरी जो है ना छोटी छोटी कंपनीज को सबलेट कर देती हैं। यानी कि कहने को फॉर एग्जांपल कि मुझे लाइसेंस मिला है और मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं और मैं हर स्टूडेंट को हाँ मेरे बेहाव पे तुम इस लाइसेंस को यूज करो और मुझे मेरा शेयर दे दो। सो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि चल रही है माजरत के साथ, बट इट इज फैक्ट। फिर आती है प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन कि ये जो रूल्स हैं ये मे बी कॉल्ड द नेपरा ARE डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन नेट मीटरिंग रूल्स 2014 और एज पर रूल्स ऑफ SRO 8921 2015 ओनली ऑन 3 फेज, सिर्फ 3 फेज पे नेट मीटरिंग हो सकती है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सिंगल फेज पे भी अलाउ होगी है 6 महीने पहले। तो आपकी बात ठीक है, सिंगल फेज पे अलाउ हुई है, लेकिन जो आगे ग्रीन मीटर लगा हुआ है वो 3 फेज है, यानी कि सिंगल फेज से वो 3 फेज को देंगे और जो बाकी 2 फेज है उसको वो डाउन कर देंगे। होना उसको 3 फेज, वो जो मीटर लगेगा वो 3 फेज ही पे जाएगा। ठीक है जी। यानी कि जो ग्रीन मीटर लगता है या रिवर्स मीटर लगता है वो 3 फेज वाला ही लगेगा।
फिर इंस्पेक्शन है और एनओसी इशूएंस है। जो इंस्पेक्शन है जी, जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 25 किलोवाट से कम डिस्को करती है, यानी कि आइस्को जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो इसको कर सकती है। 25 एंड अबव को डिस्को और नेपरा दोनों देखते हैं, ठीक है जी। लेकिन नेपरा दोनों जगह आता है, वो नेपरा लाइसेंस डायरेक्ट वो इशू करती है और यहाँ नेपरा इसके थ्रू, डिस्को के थ्रू लाइसेंस इशू कर देती है। फिर साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट होता है। अच्छा, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट में सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि अगर लेट्स सपोज आप जिस घर पे लगा रहे हैं वो घर क्या आपके नाम पे है कि नहीं। अगर आप अपने घर पे लगा रहे हैं, जिसके घर का जिसके नाम पे वो घर है, जिसके नाम पे कनेक्शन है फॉर दैट मैटर, उसके नाम पे होगा। मीन्स अगर आप अपने मालिक मकान के घर के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर मालिक मकान और के नाम पे कनेक्शन होगा, उसका और उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक ये भी चीज है। आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो जिसके नाम पे घर है, ये मीटर का कनेक्शन है, उसके और इनके दरमियान एग्रीमेंट होगा। अब आइस्को में ये 7 साल का एग्रीमेंट होता है। बेसिकली जो लाइसेंस ये इशू करते हैं वो 7 साल का करते हैं, ठीक है जी। और कुछ जगह पे इससे कम भी है, कुछ जगह पे इससे ज्यादा भी है, आई डोंट नो, लेकिन 7 साल मैक्स आइस्को ही देता है। तो उस दौरानिए तक इट अलाउज जो कंज्यूमर है कि वो सरप्लस पावर को नेशनल ग्रिड में फीड इन कर सकता है। अब जब आपका ये सारा का सारा एग्रीमेंट हो गया, तमाम चीजें होगी, फिर आपको इस पूरे प्रोसीजर के बाद जनरेशन लाइसेंस एलोकेट होता है। मींस एक है कि जो भी जनरेट करेगा, चाहे वो 1 किलोवाट जनरेट कर रहा है या 1 गीगावाट जनरेट कर रहा है, उसको एक लाइसेंस इशू होता है। वो लाइसेंस वेरीफाइड मींस कि वो जो डिस्को है वो तमाम की तमाम जितनी भी एक सेकंड, बल्कि आप लोग मेरी तस्वीर तो देख रहे होंगे। इज दिस थिंग विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एनीवन? ये आपको चीज नजर आ रही है जो पूरा पलंदा मेरे हाथ में जी? ये आपको नजर आ रही है चीज? अच्छा, एनीवेज, ये अच्छा ब्लर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जस्ट मैं ये बता दूं कि ये सारी एक एप्लीकेशन समरी होती है। ये जब आपकी ये यानी कि ये आपको लाइसेंस बनाने से पहले इन तमाम चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे मेरे पास है, ये पूरा इसका प्रोसीजर है। ये मैं इसका होपफुली मैं अपलोड भी कर दूंगा, ये सारी चीज़ें साथ ही मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। फिर इसके बाद जो है ना, ये आपको लाइसेंस ये नेपरा में जाता है, नेपरा वेरीफाई करता है, साइन करके वो लाइसेंस आपके नाम पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है जी कि आपका नेट मीटर लगता है। नेट मीटर क्या है? ग्रीन मीटर लगता है। अब वो जो ग्रीन मीटर, पहले आपका यूनी डायरेक्शनल मीटर लगा होता है, उसको वो रिप्लेस करते हैं ग्रीन मीटर के साथ। उसको लाइव करना पड़ता है, उसके लिए वो चेकिंग करते हैं कि आपका अर्थिंग सिस्टम पूरा ठीक है, इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है, लेट्स फॉर टी मॉडल लगा है, कौन सा लगा हुआ है। फिर उसको एक्टिवेट करने के बाद जो है वो आपका मीटर चेंज ऑर्डर वो आपका निकल आता है। यानी कि जब मीटर चेंज ऑर्डर निकलेगा और उसके बाद मीटर लगेगा। अब कभी कभी ये होता है कि मीटर पहले लगा जाते हैं, एमसीओ लगाते नहीं है, तो ये जरा ख्याल रखिएगा कि एक खास टाइम के बाद वो एमसीओ वो काउंट होता नहीं है और वो आपका उल्टा वो एक 6 महीने का पूरा सर्कल चलता है। आपकी यूनिट काउंट हो नहीं रहे होंगे और आपको एक टाइम आएगा ठीक ठाक बिल पड़ जाएगा। सो काइंडली इसमें ये जिस टी मॉडल टेस्ला टेस्ला मॉडल का है इन्वर्टर जनरेशन 2, उसमें 9 नंबर पे जाके काइंडली नेट मीटरिंग को इनेबल कर दीजिएगा। जैसे ही आपका नेट मीटर लगता है, एमसीओ चलाएं ना चलाएं, आपने जाके 9 नंबर पे जाके उसका जो है ना, जब इन्वर्टर में आप एंटर वाली जो पॉइंट है उसको आप जब दबा के रखेंगे 2 सेकेंड, आपके पास 1 से लेकर 99 तक पैरामीटर्स आएंगे। आपने 9 नंबर पैरामीटर पे जाके उसको कर्सर को आगे करके END लिखा होगा, EN डिसेबल, एनर्जी जो जा रही है वो डिसेबल है, उसको ENE करना है, ई एनर्जी इनेबल, यानी कि नेट मीटरिंग आपकी इनेबल वहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि वापडा वाले कई एक ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता, तो आप अपने उस जो इंस्टॉल करने वाला है उससे आप पूछ लें, नहीं तो आप ये काइंडली इनेबल खुद ही कर दें, वरना ये जिम्मेदारी कोई भी आपकी नहीं लेगा। ये मसले होते हैं, मैं खुद इस चीज़ को मैंने बर्दाश्त किया। अच्छा, अब क्या है जी, हमने किस तरह नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में क्या होता है कि जी, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू डिस्को सब डिवीजन ऑफिस एज पर एनेक्स 2। एनेक्स 2 क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जितने भी एक वो पूरी फाइल सी होती है वो आपको हैंड ओवर करते हैं जी। इसको आप इसके हवाले से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें।
तो जब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, उसमें एनेक्स 1 है, ये तमाम चीजें, अब उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। उसमें आपके पास लिस्ट ऑफ नेट मीटरिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका इंटरकनेक्शन कौन सा है, इंस्पेक्शन नोट कौन सा है, स्कीमेटिक ड्राइव्स कौन सी हैं, साइट प्लान शोइंग लोकेशन फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन क्या है, ये तमाम चीजें जो भी हैं ये मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। आपका इन्वर्टर के स्पेक, पैनल के स्पेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपियां, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो उन्होंने आके आपका देखा है सिस्टम, आपकी कोटेशन अगर आपने किसी इंस्टॉलर से किया है, स्केड्यूल एईडीबी का वो आपको लगाना पड़ता है, जनरेशन लाइसेंस टेम्पलेट वो आपको लगानी पड़ती है, एफिडेविट देना पड़ता है जुडिशियल पेपर के ऊपर, यानी कि वो जो आपका स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर करना पड़ेगा आपको। और एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम सेक्शन 24, ये आगे आगे ये इट्स अ बिग थिंग, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको समझाता हूँ। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में है कि आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स जब डिस्को सब डिवीजन के पास पहुंचेंगे एज पर एनेक्स 2 दैट आई विल शो यू लेटर, तो ये डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेज होंगे फ्रॉम डिस्को सब डिवीजन ऑफिस। अब 5 से 10 वर्किंग डे, इसमें हफ्ते एतवार को निकाल लें, और सच्ची बात है जुम्मे को भी निकाल दें, तो ये जो है ये आपको तकरीबन 10 दिनों तक वो बता देंगे। और अगर नहीं होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे कि अपना कोई डॉक्यूमेंट कमी बेशी है तो आप ठीक करके लेके आ जाएं। तो वी एज्यूम के जी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं और आपके 3-4 इजाफी चक्कर नहीं लगते, तो आपका इनिशियल रिव्यू होता है कि जिसमें आप फाइंड करते हैं कि एप्लीकेंट वाकई क्वालिफाई करते हैं इंटरकनेक्शन फैसिलिटी के लिए और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं कि नहीं, यानी कि अर्थिंग बाकायदा उसकी हुई हुई है, आइसोलेशन हुई हुई है, तमाम चीज़ें उसकी ठीक हैं, उसका कोई गुंजल ना बना हो डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, उसका प्रॉब्लम ना हो, कहीं शॉर्ट ना होने वाला मसला हो, लीकेज ना आई हो, तो ये तमाम चीज़ें ये देखना पड़ता है इसको। तो ये 20 वर्किंग डेज वो इंस्पेक्शन भी करते हैं फॉर योर क्वाइंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप पैसे थोड़े ज़्यादा दें इंस्पेक्शन फ़ौरन हो जाएगी, नहीं देंगे तो 2 महीने बाद जब दिल करेगा आ जाएंगे और मिठाई के पैसे ले जाएंगे, ये भी एडवांस में बता दूँ, ये होता है। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी इनिशियल रिव्यू में होता है, अगर ठीक है फाइन, एल्स 3 ही दिनों में वो दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट कैन मूव अप टू 10 डेज और सो। फिर एग्रीमेंट होता है जी, अगर डिस्को ऑफिस सेटिस्फाई हो जाता है कि एप्लीकेंट ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ये जो पीवी है ये लगा सकता है, तो डिस्को और एप्लीकेंट एक एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो एग्रीमेंट जो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो मैंने अभी अर्ज किया आपके गोश गुजार किया, फिर उसकी बिहाफ पे जो लाइसेंस है जनरेशन लाइसेंस, डिस्को ऑफिस एक कॉपी सेंड करेगा एग्रीमेंट बिटवीन एप्लीकेंट और डिस्को टू नेपरा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ जनरेशन लाइसेंस। अब वो जो कनेक्शन चार्जेस हैं एस्टीमेट वो कितने हैं, तो जब एग्रीमेंट हो गया, डिस्को ने फील किया फील्स दैट अपग्रेडेशन मॉडिफिकेशन existing network is required, applicant will receive a connection charge estimate from disco for the proposed interconnection facility up to the connection point including meter installation, application for which no upgradation modification is required, no CCE will be issued। अच्छा, मुझे कनेक्शन चार्ज एस्टीमेट किस तरह लगा कि मेरे पास जो लोड था वो मेरे पास था 5 सैंक्शन लोड, उन्होंने कहा अपना आप लोड जो है बढ़ाएं, तो जब आप लोड बढ़ाएंगे तो पर किलोवाट जो लोड बढ़ाने का खर्चा है दैट इज अराउंड इट वाज 1250 समथिंग। फिर आपका 3 फेज मीटर रिपोर्ट बनती है, फिर आपकी ये जो है जो अर्थिंग चेक करते हैं उसकी रिपोर्ट बनती है, इन्वर्टर कोई लगा है, बाकी तमाम चीजें, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या जा रही है, 3 फेज कनेक्शन है आपके घर में या 3 फेज सिंगल फेज कनेक्शन है कि 2 कनेक्शन है, जो भी हिसाब है वो सारा देखते हैं। फिर लेट्स सपोज कि अगर तो आपका सेंक्शन लोड ज्यादा है तो फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन सेंक्शन लोड कम है, पहले उसको बढ़ाएंगे, वो जब बढ़ेगा उसके बाद जाके आपको ये अलाउ करेंगे, तो उस मद में ये आपसे कनेक्शन चार्ज एस्टीमेट ले लेते हैं। ठीक है जी। फिर पेमेंट ऑफ सीसीई किस तरह, एप्लीकेंट विल डिपॉजिट सीसीई आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में, मींस के मेरे साथ ये एक इशू हुआ था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा उसको बढ़ाना था, तो वो जो है नेशनल बैंक में जाके आप ये जमा कराएं, जो भी इनका डेजिग्नेटेड बैंक होता है, वो एक वो चालान होता है, वो चालान जाके आप डिस्को में जमा करा दें, लेकिन उसकी कॉपी लाजमी अपने पास रखें, अपने पास रिकॉर्ड एक पूरा रखें, क्योंकि ये भी होता है कभी कहीं आग लग जाती है, डॉक्यूमेंट्स जल जाते हैं, तो यू मस्ट हैव सम कॉपी कि आप उसको जो है चला सकें। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ इंटरकनेक्शन फैसिलिटी है जी, जब ये सारी की सारी पेमेंट होगी है डिस्को ऑफिस, अच्छा अभी क्या करते हैं कि जी आपसे 3 फेज मीटर रिपोर्ट कभी एक ही बजाय 2-3 पता नहीं कितनी रिपोर्टें बन जाती हैं इनकी, उधर ही बंदा बैठे बैठे बना देगा, लेकिन प्रोसीजर मस्ट भी कि बंदा जाए, जाके देखे और उसके बाद करे। तो लाजमी उसको इंसिस्ट करें कि यार तुझे पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन मेरे घर आके देख, क्योंकि ये आपकी जान और सलामती का मामला है, खुदा ना खासा कल को
शॉर्ट हो गया कोई मसला, आपके घर को नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह अगर आग लग गई तो कौन जिम्मेदार है? अगला तो बैठा हुआ है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। फिर जो है ये डिस्को ऑफिस विल इंस्टॉल एंड कमीशन द प्रपोज्ड इंटरकनेक्शन फैसिलिटी आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ जनरेशन लाइसेंस टू द डीजी बाय नेपरा। नेपरा की तरफ से जैसे डीजी लाइसेंस आया, इंटरकनेक्शन हो गया, उसको के लिए सिस्टम लाइव करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए सिस्टम बंद करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं। आपने देखा होगा कभी बिजली 5 मिनट के लिए जाती है और फिर आ जाती है, वो क्या होता है बेसिकली? वो आपका वो मीटर इंस्टॉल करके उसको लाइव कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जस्ट 5 मिनट के लिए बिजली गिर आ गई है, तो उसका ये मामला होता है कि उसमें बिजली उन्होंने बंद करनी होती है उस एरिया की। उसके लिए बाकायदा वर्क ऑर्डर इशू करना पड़ता है और टीम आती है बाकायदा, और वो जो कनेक्शन होते हैं वो करने पड़ते हैं उसके। अच्छा जी, ये है जी लिस्ट ऑफ नेट मीटरिंग डॉक्यूमेंट्स जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट, डीजी और आपके दरमियान स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है। ठीक है, स्केड्यूल 1 में आपको भेज दूंगा। ये अब जो स्केड्यूल 1 है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय डिस्को है। नंबर 2 है नेपरा को जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स जो एईडीबी को चाहिए। ठीक है जी। 2 है इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल या डीजी इंस्टॉलेशन एज पर एईडीबी रेगुलेशंस, कि वो रेगुलेशंस आप फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। फिर स्कीमेटिक डायग्राम्स, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सिस्टम, वो स्केड्यूल 8 में आता है। साइड प्लान शोइंग लोकेशन, यानी कि आपकी साउथ फेसिंग किधर करके कितना टिल्ट है, आपने ओवरहेड करके लगाना है या आपने ग्राउंड फिटिंग पे करके लगाना है, ये चीज बनती है उसमें। फिर साइड प्लान शोइंग लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिस्कनेक्ट स्विच, कि डिस्कनेक्ट स्विच आपने बाहर किधर लग करके लगाना है। फिर आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का स्केड्यूल 2, ये नेपरा का डॉक्यूमेंट है, यू मस्ट नीड इट। फिर एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस नेपरा स्केड्यूल 3, ये आपको साथ लगाना पड़ता है, ये फिल करना पड़ता है, आपका नाम जिस आपका शनाख्ती कार्ड ब्ला ब्ला इस टाइप की चीजें। फिर फीस स्केड्यूल, जो फीस जमा कराई है वो आपको साथ लगानी पड़ती है। एफिडेविट जो आपका स्टाम्प पेपर होता है, ओरिजिनल आपने कंसर्न ऑफिस को जमा कराना है। अगर डिस्को की बात है तो अगर 25 किलोवाट से कम है तो एस्को को जमा करा दें, और अगर 25 किलोवाट से ऊपर है, 25 और या उससे ऊपर है तो नेपा को डायरेक्ट जमा करा दें। फिर जनरेशन लाइसेंस टेम्पलेट, वो आपको साथ लगानी पड़ती है। ठीक है जी। वो उसके ऊपर जो है ना आपका सारा वो आपने अपना फिल करना है, आपका नाम, आपका तमाम चीजें व्हाट्सएवर पर्टिकुलर्स है, वो फिर वहां से जाके साइन होगी, स्टैंप होगी और आपको लाइसेंस मिलेगा। यानी कि बेसिकली वो एक टेम्पलेट की सूरत में उतरा जाता है। फिर स्केड्यूल 7 AEDB, ये हमारे ये दिया हुआ है कि जी इसकी लीगल पेपर पे कि आप जितना लगा रहे हैं उतना ही लगाएं। खुदा न खास्ता कल को आपने अगर ये प्रैक्टिस की, जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट है, कि लोग 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं लीगली, उसके ऊपर 5 किलोवाट खामोशी से और लगा देते हैं, तो कहने को उनकी जनरेशन ज्यादा होती है, लेकिन खुदा न खास्ता पकड़ा गया और उसमें आपका 5 किलोवाट है और आपका नजर आ गया 10 किलोवाट का सिस्टम, तो आप अपना देख लें कि फिर क्या हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। फिर कोटेशन ऑफ डीजी इंस्टॉलेशन की कोटेशन क्या थी उसके लेटर हेड पे, यूजुअली लोग जो है ना ये इंस्टॉलेशन कंपनी से कराते हैं। कंपनी से क्यों कराते हैं? उनका एक्सपीरियंस होता है, दे नो कि किस तरह बेहतर तरीके से हो सकता है। सो ऐसी कंपनी से कराएं जो जिसके पास जेन्युइन लाइसेंस हो, सबलेट ना किया हो, और आप और उसके पास एक्सपीरियंस ठीक ठाक करके इंस्टॉलेशन का हो। तो आपके पास फिर जो है लोड फ्लो स्टडी है, वो आपको अच्छा कोटेशन आपने कर दी, लोड फ्लो स्टडी दे दी अगर 250 किलोवाट से ऊपर है। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग के आपका जो 35 किलोवाट से ऊपर तो नहीं जा रहा अभी, तो आपको लोड फ्लो की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए भी आपके पास PSSE होनी चाहिए या FDRANA होना चाहिए, यहाँ तक या जो भी हिसाब, ये जो 500 अबव, ये 250 अबव जितने भी ये जो IPPs हैं, ये उनके लिए मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये अगर गवादर में अगर कोई जनरेशन स्टेशन लगेगा और वो अगर 250 किलोवाट से ऊपर होगा, उसका लोड फ्लो स्टडी PC1 में भी डालना पड़ेगा इन शॉर्ट। फिर आपके पास इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो आपका वो जो इंस्पेक्टर आएगा इशू करेगा कि हाँ जी एवरीथिंग इज फाइन। आपकी कॉपी अटेस्टेड CNIC की ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। फिर कॉपी ऑफ लास्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपने बिल लास्ट जमा कराया है, आपके इन्वर्टर के स्पेक, आपके पैनल के स्पेक। सो ये तमाम चीजें आपने, ये इनिशियल डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास सिस्टम कौन कौन सा, मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं सिस्टम के। अगर 10 किलोवाट का मैं सिस्टम करूं, अगर मैं ऑन ग्रिड करूं, ऑन ग्रिड का मतलब यह होता है कि जो जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट ग्रिड में फीड हो रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ग्रिड गया तो ये भी गया। जैसे हमारे नस्ट में है कि PV सिस्टम लगा है, वो ऑन ग्रिड है, ग्रिड बंद होता है वो भी बंद हो जाता है।
तो ज़्यादा अच्छा सिस्टम हाइब्रिड है, और उसमें भी प्रेफरेंस पहले अपनी रखें और उसके बाद इजाफी यूनिट्स को बाहर भेजें। ठीक है जी। अब इसमें प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है जो कि यूज़ करना होता है, ऑन ग्रिड फंक्शन, ये रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट कि आप अपनी मर्जी से डब्बा इन्वर्टर लगा दें जो 3 स्टेज वाला। यू मस्ट यूज प्योर साइन वेव इन्वर्टर। फिर आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.99, एफिशिएंसी 98, लेटेस्ट मॉडल IP65। आईपी स्टैंड फॉर इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस प्रोटेक्शन 65 मींस कि पार्टिकल और वाटर से, पहला चीज पार्टिकल के 6, यानी कि जो आपकी अंडर वाटर ड्रिलिंग मशीन हैं वो IP68 या 69 होती हैं। ठीक है। इट मस्ट बी IP65 ऑल इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम। RS232 या RS485 वाईफाई जीपी RS ईथरनेट के लिए। फिर ये आपके पास 5 किलो वाट का सिस्टम है, कितने वाट के, अच्छा अब ये कैंडियन पावर का 640 का भी आ रहा है, 660 का भी आ रहा है। अब मोनो पर हाफ कट आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में इन हुआ है। ये पुरानी स्पेसिफिकेशन है, 17.2% था एफिशिएंट, इट इज 23% एफिशिएंट। लेकिन इनके सर्टिफिकेशन जो BIC 6.215, दे मस्ट अवॉइड दोज रूल्स रिटन ओवर हेयर। IC 61730 UL1703 CEC listed MCS and C, ISO 9001.2008। अब ये ISO 9001.2015 हो गया, ये 2015 में डॉक्यूमेंट आया था, अब ये जो नया वाला है उसमें 2015 करके आ गया। और ISO 14001-2004 और BSOH SES 18001 से 2007। फिर पावर केबल, काइंडली प्योर कॉपर की केबल यूज करें। फास्ट केबल होगी, पाकिस्तान केबल होगी। मैं किसी की वो नहीं कर रहा, इधर तशहीर नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अच्छी केबल एक ही दफा करें। नॉर्मली क्या होता है, हम सस्ती केबल लगा देते हैं, कोई मसला हो जाता है, हमें वही महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वही वाला मामला हो जाता है। PVC इंसुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, लॉसेस कम इसमें, उसके लिए ज़रा तरीके के साथ वो हमें इसको लगाना पड़ता है। डक्टिंग प्रॉपर उसकी होनी चाहिए, कहीं भी डक्टिंग ऐसी लूज ना हो कि पानी आना शुरू हो जाए, कोई मामला ख़राब हो। वायरिंग की ड्रेसिंग अच्छी हो, ये नहीं कि वो लटक रही है जो भी, क्योंकि अगर वो इंस्पेक्टर आगे चेक करेगा, वो कहेगा ये तार लटक क्यों रही है, और खुदा ना खास्ता अगर वो और चीज़ें अगर उसके साथ ख़राब होगी तो चीज़ें मसला कर सकती हैं। फिर ओवरलोड और सर्ज प्रोटेक्शन, इसकी डिवाइसेस आपको लगानी पड़ेंगी। सर्ज प्रोटेक्शन के लिए आपको ये जो सर्ज अरेस्टर है, इट मस्ट बी 99.99% प्योर कॉपर। अब मार्केट में आजकल वो स्टील वाले आते हैं जो कि ऊपर कॉपर उन्होंने जस्ट वो स्प्रे किया होता है, वो कोटिंग हुई होती है उसके ऊपर कॉपर की, वो काइंडली यूज ना करें, प्योर कॉपर यूज करें। क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम है, वो क्विकली जो है ना, जो भी सर जाएगी फौरन वो नीचे, क्योंकि करंट हमेशा लोएस्ट पाथ को देखता है। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी वो 0.5 तक चाहिए होती है, वो ये आराम से प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। फिर सिलेक्टर स्विचेस आपके पास अच्छे होने चाहिए, लॉसलेस जंक्शन होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली कंट्रोल होना चाहिए। कॉपर रॉड्स आपके पास एडजस्ट सही करके इसमें लगने चाहिए, और लाइटिंग अरेस्टर। फिर आपके पास फ्रेम है, हॉट डिप्ड गैल्वनाइज स्ट्रक्चर। गैल्वनाइज स्ट्रक्चर यानी कि ये ना हो कि वो रस्टिंग होनी शुरू हो जाए स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल आपने ओवरहेड स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, और अगर लेट्स सपोज वो स्टील की बजाय वो आयरन का है, मैं एग्जांपल देता हूँ, और रस्ट होता है, तो 2 साल बाद अगर बारिशें हो रही हैं उसने तो धड़ाम से गिरना है नीचे। तो इट मस्ट बी गैल्वनाइज प्रॉपरली, ताकि रस्टिंग ना हो उसकी कोई भी। ठीक है। और वो इतना हो कि वो लोड उठा सके, क्योंकि जो उसकी शीट होती है, शीट तो है, लेकिन वो जो काउंटर वो जो पीछे उसकी बनी होती है वजन के लिए, तो कम से कम वो जो फोर्सेस हैं वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर आपके पास ये है जी NX2। अब NX2 में क्या है, आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट CNIC, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, आपका लोकेशन कौन सा है, डीजी फैसिलिटी यानी कि किस जगह पे और किस डिस्को में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेस्टेज 2 है, वेस्टेज 1 है, जो भी है, या ये मरीड हसन की है, या चकलाला की, मीन्स के सब डिवीजन कौन सी है, जहां आप जिसके सबसे करीब आप जहां से बिजली आपको आ रही है, वो आपने बताना है। डीजी का साइज बताना है, अप्रॉक्सीमेटली मंथली एनर्जी जो कि इससे प्रोड्यूस हो सकती है, फी कितनी डिपॉजिटेड है, ये इनिशियली आपको फीस देनी पड़ती है और इट्स नॉट रिफंडेबल। सो खैर उसके अलावा भी बड़ा कुछ आपसे ले लेंगे, लेकिन काम उसके बगैर चलता नहीं है इनका। ये आपका सिग्नेचर हुआ, ये आपका नेम और आपका डिस्को, ये कब हो गया, एप्लीकेंट्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, CNIC, एप्लीकेंट्स मेलिंग एड्रेस, ये तमाम चीज़ें, ये NX2 है। ये जब सारी की सारी आपने, अब सिंगल फेज है, 3 फेज है, इन्वर्टर कौन सा लगा है, कितने किलोवाट का सिस्टम है, साइट कौन सी है, डिज़ाइन क्या है, पैनल्स किस टाइप के, मोनो पर हाफ कट है, या इन्वर्टर कौन सा है,
ठीक है जी। फिर इसके बाद जी ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट है 1 किलोवाट से 1 मेगावाट का बिटवीन डीजी ओनर एंड डिस्को। अब ये सारी की सारी चीजें आपने फिल करनी है, ये सारा एग्रीमेंट, ये जितनी भी चीजें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जितना दफा मैंने आपको दिखाया है, ये सारा बेसिकली ये भरा हुआ है। इन तमाम ये टेम्पलेट सारी की सारी मौजूद हैं। ठीक है, इसकी बिहाफ पे ये भरता है और ये फिर यहाँ से डिस्को से ये नेपरा जाता है, नेपरा से होकर लाइसेंस आता है। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सी एग्रीमेंट आपका हो गया, डिजाइन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। 1 साल की सर्विस वारंटी है, क्या हिसाब है, 3 साल की है, कितना है, इंटरकनेक्शन या डिस्कनेक्ट स्विच वो क्या है, मॉडिफिकेशन टू डीजी फैसिलिटी, इंश्योरेंस, लाइबिलिटी जो भी है, डीजी फैसिलिटी कमीशनिंग, टेस्टिंग, एक्सेस टू डीजी फैसिलिटी, टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑफ अ डीजी फैसिलिटी और डिस्प्यूट्स राइट टू अपील टू द अथॉरिटी। अब ये तमाम चीज़ें आपके पास, ये नेट मीटरिंग की रेफरेंस गाइड है, आई विल शेयर दैट एज वेल। ये फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स, नॉन वेवर, टर्म्स एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, ये तमाम दी हुई हैं, सक्सेसर्स एंड असाइंस और एप्लीकेशन एंड डिस्को सिग्नेचर एंड सील, ये तमाम एप्लीकेंट के सिग्नेचर, उसका नाम, टाइटल, विटनेस वन, विटनेस टू, उसका नाम और ये जो भी है वो करने के बाद ये तमाम चीज़ें जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए। अच्छा, अब ये सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रिप्शन क्या है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, बैटरीज का 5 किलोवाट का, इन्वरेक्स है, टेस्ला है, कौन सा है, ठीक है जी, ग्रिड टाइड नेट मीटरिंग है, 5 साल लोकल इंटरनेशनल रिप्लेसेबल वारंटी, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। मैंने सिर्फ इस वजह से शो कर रहा हूँ ताकि वहाँ क्या चीज़ आप कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से जो आपको इधर दी हुई है। फिर कैंडियन सोलर है, 535 है, 540, मोनोपर्क या मोनोपर्क हाफ कट जो है, प्योर ए ग्रेड टायर 1, 10 साल की उसकी होती है, 25 साल की लाइफ होती है, लेकिन इसका डिग्रेडेशन 0.5 होता है परसेंट और चल जाता है आराम से। फिर जीआई स्ट्रक्चर 14 गॉज, आपने बोल्टिंग क्या की, कभी कभी बहुत जोर का जकड़ चलता है और ये उठा के परे कर देता है इस पैनल को। फिर आपके पास पीवी केबल हो गया, काइंडली ये 6 मिलीमीटर फायर प्रूफ की बजाय इसको लाजमी 10 मिलीमीटर से कम की कभी भी ना रखें। ठीक है जी, अगर आप इसके लिए कर रहे हैं अर्थिंग के लिए, क्योंकि जो अर्थिंग के लिए जितना कंडक्टर का साइज ज्यादा होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, उतना शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा सर्च को उससे पार करने में। सो काइंडली यूज 10 रादर देन ये 6 मिलीमीटर। ठीक है, इसका ये मैं जस्ट आई स्टैंड करेक्टेड। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विद इंडिकेटर्स, यानी कि लाइट, यानी कि राइट नाउ आइदर यू आर ऑन ग्रिड या दूसरी साइड पे, वो आपको इन्वर्टर भी बता देता है। फिर डक्ट पाइप हो गया, टाइज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, एक्सेसरीज, MP4 कनेक्टर्स विद इंस्टॉलर्स। ये MP4 कुछ और ना समझिएगा, वो कनेक्टर उसकी टाइप ऐसी होती है कि वो कनेक्शन उसका बनाना पड़ता है, तो बैंड्स आने आते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हैं इसमें। लाइटिंग अरेस्टर, इसके लिए प्योर कॉपर वायर, DC अर्थ एंड मेन स्विच, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, डिलीवरी इक्विपमेंट और बैटरीज, मींस लॉन्ग ट्यूबलर बैटरीज या डीप साइकिल बैटरीज, वर्स एवर दे आर, 12 वोल्ट बेसिक होता है। अगर आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है, टेस्ला वो 48 पे चलता है, तो आपने क्या करना है, इसको सीरीज में 48 करके उसके साथ सिंक कर देना है, तो आपके पास ऑटोनॉमी आ जाएगी अराउंड। अगर आप AC ना चलाएं तो आपके पास 6-7 घंटे की ऑटोनॉमी होती है, अगर आप AC चला रहे हैं इन्वर्टर के साथ तो क्वाइट पॉसिबल आपके पास 4 घंटे की भी ऑटोनॉमी मुश्किल से हो। अच्छा जी, अब ये जो उसमें है कि जी रेडिएशन वो किस साइड पे किधर है, अब बीम या डिफ्यूज, यू कैन डू योर मैथ, यू कैन इवन गूगल इट आउट। ये सोलर रेडियंस इस्लामाबाद में कितनी करके है, बीम कितनी है, डिफ्यूज कितनी है। ठीक है जी। फिर ये जो पैनल आपने लगाने हैं वो किस साइड पे लगाएंगे, वो साउथ वेस्ट व्यू उसका क्या होगा, साउथ ईस्ट व्यू क्या होगा, साउथ व्यू क्या होगा, क्योंकि पैनल हमेशा साउथ फेस की तरफ होता है। तो उसमें होता है कि मीन्स की जो मशरक से जनूब से होते हुए मगरिब में गरूब होता है। सो जो जितनी पावर मैक्सिमम आ रही होती है वो सारी सारी उसको इंकैप्सुलेट कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी एक डिजाइन का इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो कैटर दैट ऑल्सो इन योर माइंड कि आपने ये चीजें भी करनी होंगी। फिर आपके पास ये जी स्कीमेटिक ड्राइंग है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, कहाँ कहाँ ये जा रहा है, क्या हिसाब है, आपका मीटर कहाँ से कनेक्शन हुआ, ये आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया ये वाला। ठीक है जी, ये आपके पास मीटर हो गया, ये AC DC डिस्कनेक्ट स्विच टू द डिस्को। ठीक है जी, ये आपके पास डिस्कनेक्ट स्विच है। और ये आपके पास बाकी जो जा रहे हैं इन्वर्टर का या DC जो यहाँ तक आ रहा है उसका, जितने पैनल से लेके यहाँ तक का, ये सारी चीज़ें। फिर ये आपके पास ग्राउंडिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर हमेशा छत के ऊपर करके लगेगा
और अर्थिंग तक यहाँ टर्मिनेट होगा। ठीक है जी। आपने इक्विपमेंट की भी अर्थिंग करानी है, आपने सौर रेस्ट्रिक्टर की भी अर्थिंग करानी है। वो आजकल एक बड़ा अच्छा सा वो सिस्टम वैसे ही वो ज़मीन में आप फिट करके मसाला भर के उसकी प्लेट के साथ एडजस्ट करें, वो बिल्कुल आराम से एडजस्ट हो जाता है। फिर ये है जी आपके पास कैंडियन सोलर। ठीक है जी। मोनोपर्क, ये आपको जमा कराना पड़ता है साथ साथ कि आपके पैनल कौन से टाइप के पैनल आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी टाइप क्या है, उसके आईवी करेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रिकल डाटा क्या है, मैकेनिकल डाटा क्या है, एसटीसी के ऊपर क्या है, नॉन एसटीसी पे क्या है, टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे क्या होगा, पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट पे क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। नाउ इश्यूज एट हैंड, अब हमें मसले क्या क्या होते हैं। अब जहां मसले आते हैं वो हमारे लिए रिसर्च के एवेन्यूज बनते हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास इश्यूज ये हैं जी के, सॉरी, हमारे पास जनरेशन परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, डिमांड वेरियस सेक्टर में स्लो डाउन हो गई है, स्टिल एनर्जी शॉर्टेज परसिस्ट ड्यू टू वीक ट्रांसमिशन नेटवर्क। ठीक है जी। ये भी एक मसला है कि एनर्जी सप्लाइड ज़्यादा है, रिकॉर्डेड डिमांड उसके हिसाब से हमारे पास, ये तो गीगावाट आ रहा है ना, मेगावाट के हिसाब से ये मंथली सरप्लस यहाँ जा रहा है और कैपेसिटी सरप्लस यहाँ जा रहा है। ठीक है, जनरेशन पोटेंशियल यहाँ है, सरप्लस यहाँ है। ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास शॉर्टेज है, क्यों? फिर नेट मीटरिंग कनेक्शन जो है ना इंक्रीज होते जा रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कोई नहीं है, जो भी अप्लाई करे ठीक है, लेकिन एक और मसला है कि बहुत कम लोगों को अलाउ किया जा रहा है। अगर आप परसेंटेज ये निकालें टोटल कंज्यूमर बेस से, अगर आप इसको डिवाइड करें, इट हार्डली मेक्स 3 to 4%। ठीक है जी। नेट मीटरिंग डिजर्व कनेक्शन इंक्रीज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, ये एक इशू है। रिवर्स मीटरिंग कनेक्शन में नॉट इंक्रीज विदाउट प्रॉपर री कि हमारी वो सीलिंग टच हो चुकी है उसमें कई जगह पे। नेट मीटरिंग कनेक्शन जो है हम न्यू स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं, उसमें देर आर फर्दर थिंग्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, बट राइट नाउ इस सिस्टम को पहले री करें, उसके बाद ही देखें, क्योंकि इसमें हमें मसला ये आ रहा है कि डब कर्व्स भी बनने शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो लेस्को में करके हैं। ठीक है जी। और उसके बाद एस्को का नंबर आते हैं। लाहौर 1 करोड़ आबादी का शहर है, उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा हैं। और कराची जो पाकिस्तान का जो है ना रोशनियों का शहर, जो कि हब है हमारा, ये कारोबारी हब है, उसमें आप देख लें कि आपके पास कितने थोड़े करके कनेक्शन उस तरह बन रहे हैं। सो इट्स एन अलार्मिंग थिंग कि हमारे पास पहली बात है कि कनेक्शन नेट मीटरिंग के एक तो कम लोगों के कर रहे हैं, और जिनके करते भी हैं उनका इतना डिले होता है कि पे बैक पूरा नहीं होता उनका। ठीक है जी। फिर अगर आप देखें कि ये आपके पास अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने नंबर हैं, उनसे कैपेसिटी कितनी कम्युलेटिव बनी, जब सम कर दें। अप्लाई टू नेपरा कितनों ने किया, जनरेशन लाइसेंस कितनों को इशू हुआ। अब 2889 2889 में से 2689 को किया, 200 किधर गए, नो आइडिया। इंस्टॉल कैपेसिटी ये मेगावाट्स में 34 बनती है। कमीशन सिस्टम 2580, कैपेसिटी 32 है, कमीशन कितने हुए? ठीक है, लाइसेंस तो हो गया, कमीशन कितने? तो ये चीज़ है। अगर आप देखें तो सबसे कम जो है टेस्को में कुछ भी नहीं है, ट्राइबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में। ठीक है जी। तो अगर आप इस हिसाब से कैस्को को देख लें, कैस्को के टोटल 7 कनेक्शन एप्लीकेशन है। सेप्को 17 है, हस्को 28 है, फेस्को 640 है, मैपको 1040 है। और ये डाटा 2022 ही के शुरू का है। ठीक है जी। रेस्ट श्योर इसका सोर्स लाम्स है, सीपीपीए, एईडीबी और नेपरा है। तो यानी कि जो डाटा आपको दिखाई जा रहा है, इट्स नॉट नॉट फज्ड, इट्स लिटरली एक्यूरेट टू द कोर। अगर आपने कोड करना है तो इसको फरवरी 2022 तक का कोड कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास है जी टेक्नो इकोनॉमिक्स। अब टेक्नो इकोनॉमिक्स आपने कैसे निकालना है? ठीक है जी। पहली बात है वो सिस्टम की इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं, सवाल तो बनता है कि किस पे निकालें, या एट हैंड मेरे पास क्या टूल है। हर देर आर सेवरल टूल्स, आप किसी पे भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हाइब्रिडाइजेशन कोई मेक सेंस कर रही है कि नहीं। अब डीजल मीन्स आप किस तरह बताएंगे कि जी अगर आप ये यूज़ करें तो आपका इतनी बेहतरी आ रही है। ठीक है जी। आपने डीजल को सबसेट कर दिया पीवी के साथ, या जो भी पुराने उसमें आपका या ये था यूपीएस, इट वाज फेड बाय थर्मल पावर। अब उसकी वजह से जो आपको इनिशियल कैपिटल लगाना पड़ रहा है वो कितने अरसे में पे बैक है, लॉन्ग टर्म में आपको कितना फायदा है, उसके लिए ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से ये तमाम वेरिएबल्स, टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेबिट अकाउंट, टैक्स रेट, इक्विटी अमाउंट, इक्विटी रिटर्न, एवरीथिंग इज ओवर देयर। just you must just know the right value,
पुट इट और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। बाकी क्या है, टेक्निकल फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप इनपुट देते हैं, कैपेक्स निकाल रहे हैं आप, लोड डाटा हो गया, करंट लेआउट हो गया, जितना भी कंजम्पशन पहले कितना था, रीन्यूएबल कितना है, उसकी वजह से क्या चीज़ बन रही है, उसकी वजह से आपका क्या बेस्ट चीज़ करके आ रही, फाइनेंशियल मॉडल, कैश फ्लो क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, ग्रोथ सिनारियोज में क्या, इकोनॉमिक वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये आप उससे आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इमिशन रिडक्शन, ये है जी पाकिस्तान का इमिशन रिडक्शन का ग्राफ, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की तरफ से इशू हुआ है। तो ये हमारे पास इमिशंस हैं विच आर वेरी लेस, कंपैरेटिवली वेरी लेस एज कंपेयर टू other producers, but yet we are hardly third most hardly stricken country climatically. तो 50% रिडक्शन है जी पाकिस्तान के प्रोजेक्टेड इमिशन। कह तो रहे हैं कि जी 2030 तक 15% कंडीशनल है और 35% कंडीशनल। कंडीशनल यानी कि अगर आप ये टेक्नोलॉजीज को मजीद करें, वो जो पाकिस्तान को जो प्लान था कि जी आपने ARE पॉलिसी में 2025 तक 25%, 2030 तक 30% तक करना है। फिर जो रिन्यूएबल टारगेट है, जो IG SEP का जो टारगेट है, वो भी 60% शेयर इलेक्ट्रिकल मिक्स का है, यानी कि जो हमारा 2030 तक हमने 60% तक किसी हद तक 2030 या 40 तक जितना भी हम हो सके, यानी कि ऐसे इकदाम करें कि हमारा 60% रिन्यूएबल एनर्जी शेयर हो। ठीक है, अब डिपेंड करता है उसमें हाइडल कितना इन होता है, विंड कितना इन होता है, PV कितना इन होता है। और अगर लेट्स सपोज PV डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ज़्यादा करके इन होता है, तो ओवरऑल हमारा पेनिट्रेशन इस हिसाब से बढ़ सकता है और एमिशन इस हिसाब से कम हो सकती है। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी। तो सोलर का जो है ना पोटेंशियल वो ज़्यादा करके एरिया वाइज भी हमारे पास जो है ठीक ठाक इसका पोटेंशियल है। विंड हमारे पास सेग्रीगेटेड एरियाज पे सिंध में है, या तो हमारे पास कोस्टल एरिया में करके बलूचिस्तान और बाकी जगह पे। बायोमैस हमारे पास दही इलाके जो रूरल एरियाज हैं उसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है उसका। ठीक है, तो अगर हम सोलर को टारगेट करें और रिन्यूएबल को टेक्निकली सिस्टम को रीइंफोर्स करके बढ़ाएं, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास बेहतर सिस्टम हो सकता है। एंड फाइनली कि हमारे पास जैसे फ्यूचर ऑफ नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, अगर हम इसको देखें, ये बेगास हो गया, विंड सोलर, ये एक्सपोर्ट विंड, ये सॉरी एक्सपोनेंशियल विंड, एक्सपोनेंशियल सोलर। तो दिस इज द काइंड ऑफ मिक्स दैट वी आर बेसिकली फ्यूचर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल के जो हैं, हम इसको अगर इंक्रीज करने की कोशिश करें, दैट इज आवर फ्यूचर प्रोजेक्शन सब्जेक्टेड टू, अगर हम इस सारे के सारे पोटेंशियल को इन कैप्चर कर लें। तो अगर हमारे पास अभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन है 25, इंडस्ट्रियल है 8, रेजिडेंशियल 51, एग्रीकल्चर 11, इस रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल व्हाट्सएवर इस साइड को बेसिकली ये 3 एरिया स्कैटर होते हैं। एग्रीकल्चर को अगर छोड़ भी दिया जाए, तो अगर इस जगह भी हम नेट मीटरिंग को एफिशिएंटली एडजस्ट करके लगा लें, इट कैन कंट्रीब्यूट टू अ मच बेटर प्रोपोजिशन। फिर लॉस हमारे नीले 20% है, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम भी ओवरलोड होता है ज़्यादा पावर पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी ओवरलोड होता है उसको आपके घरों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर वो रिलीफ हो सकता है किसी हद तक, व्हाई नॉट, यू मस्ट गो फॉर इट। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि अप टू 50% रिन्यूएबल को आपने इस लोड के हिसाब से पेनिट्रेट कराना है अक्रॉस 2050, और नेट मीटरिंग इज वन ऑफ द वे टू अचीव दैट। ठीक है जी, अमंग्स वेरियस वेज। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो टोटल सिस्टम लॉसेज हैं, वो अगर हम प्रॉपरली इसको कर सकें प्लानिंग के साथ और तरीके के साथ, बिलो 12% तक हो सके। ट्रांसमिशन लाइन है कि अब वो कम, अगर वो एफिशिएंटली ऑप्टिमली यूज हो रहा है एंड यू आर नॉट पुशिंग इट क्रॉस टू द ऑपरेटिंग लिमिट, तो 2% तक लॉसेज आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को आपने अगर 10 से कम करना है, तो अगर ये भी हो जाए और सर्कुलर डेट को आइडली जीरो किया जा सके 2050 तक, क्योंकि अभी भी जो फ्यूल आपका आ रहा है वो सारा का सारा फॉसिल फ्यूल है, वो तो आपको सर्कुलर डेट बना रहा है। तो अगर इस चीज़ को सबसेट किया जा सकता है, तो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज के आप लोड सिस्टम पे कम करें और बाकी चीज़ें, खैर फिर उसमें और भी मामला आ जाते हैं जो कि अभी टॉपिक से ऑफ हो जाएंगे। फिर RG पेनिट्रेशन 50% आपने करनी है। तो दीज आर द फ्यूचर डायमेंशंस कि आप किस तरह नेट मीटरिंग को यूज करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। नेट मीटरिंग इज वन ऑफ द वे, और दैट टू इज एमिंग एट सोलर। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि लेट्स सपोज किसी का विंड चल रही है, तो नेट मीटरिंग के ऊपर विंड के साथ क्या होगा, दैट्स अनदर थिंग, जो कि अभी तो सोलर के ऊपर बात हो रही है। व्हाट अबाउट विंड, उसके बारे में क्या चीज हो सकती है, दैट्स अनदर थिंग टू वर्क विद। क्या वो इस हद तक हो सकता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी, लेकिन वही ये बात है, इंडिजिनाइज करना पड़ेगा हमें।
So thank you very much for your patience. Thank you. Any questions? अच्छा जी. Thank you so much, sir. We will wait 1 or 2 minutes. If any participants have हाँ question, मैं करता हूँ. right over here in chat box. So we will wait for your questions. ओके मैं करता हूँ जी, ये मैं करता हूँ. एक सेकेंड, ये कुछ एक तो आए हुए सवाल. What can be the impact of CTBCM approved by NEPRA on PPA environment in Pakistan? Good question. Good question. We are also working on that. और मज़े की बात है, आज ही मुझे इसके बारे में कोई चीज़ें करके भेजनी है अपने हायर अप्स को. तो इस तरह मैं करता हूँ कि आप क्वेश्चन, मैं बल्कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं इन सब की डिस्क्रिप्शन करके जो है आपको राइट डिटेल्स के साथ, क्योंकि अभी अगर मैं कोई डिटेल कमी बेशी होगी तो खाम खा मसला ना हो जाए. तो CTBCM का है इम्पैक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्टेड टू उसमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिसको उनको बेहतर करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ही दे सकता हूँ. अगर अभी मैं, इट्स अ बिग टॉपिक, मैं आपको पूरे कैन बी डेवलप प्राइवेट कमर्शियल ग्रिड नाउ आफ्टर CTBCM. अच्छा, CTBCM की भी बात मैं कर लेता हूँ और मैं नेपरा की भी एक और बात कर लेता हूँ. बेसिकली ये है कि आइसोलेटेड माइग्रेट के ऊपर उन्होंने काम को शुरू किया हुआ है. तो आइसोलेटेड माइग्रेट वो है जो कि आपका ऑफ ग्रिड एरिया में अगर आपने लेट्स सपोज लगाना है और वहाँ नेशनल ग्रिड नहीं पहुँच सकता, तो आप लगा सकते हैं एज ए थर्ड पार्टी माइग्रेट. बाहर के मुल्कों में थर्ड पार्टी माइग्रेट इज समथिंग problematic, but in Pakistan, it's one of the means to achieve it. कि लेट्स सपोज एक फार अवे एरिया है, नेशनल ग्रिड से ठीक ठाक दूर है, तो मैं अगर वहाँ एक ट्रांसमिशन लाइन 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन बिछाऊँ, तो जो थोड़ी अमाउंट ऑफ बिजली जो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे अरबों रुपए लगाने पड़ेगा, तो अगर लेट्स सपोज 1 करोड़ में वही क्लोजर बाय पे अगर वो कर दें, तो यस यू कैन डेवलप प्राइवेट कमर्शियल ग्रिड. यस यू कैन. लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपका वही होगा कि आपको जनरेशन लाइसेंस होगा और आप IPPs की तरह उसमें करेंगे. और एट जंक्शन वुड लाइक टू पे, एक सेकेंड, ये क्या है जी? एट दिस जंक्शन वुड यू लाइक टू पे मेरे, अच्छा, जज़ाकल्लाह. अच्छा जी. Our main concern is how can a net metering consumer monitor the return on investment, how to enhance finance capacity by green finance और UNIDO renewable project. अच्छा जी, जो आपके पास जो है मोडेलिटीज. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें होती हैं कि यूजली जो इंस्टॉलर होता है वो आपको कहता है जी मीटिंग और बाकी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है इंस्टॉल करना. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको आप कहा करेंगे जी सारी चीज़ें आप खुद करके दें, मेरा कोई कंसर्न नहीं. अगर आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, आप ज़्यादा पैसे लें, जाके आप काम खुद कराएं. अच्छा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आपका अमाउंट लग गया है 10 लाख फॉर एग्जांपल, ठीक है जी. आप मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? मॉनिटर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पिछले साल का बिल उठाएं, पिछले साल 12 महीने आपने कितना कितना बिल पे किया, ठीक है जी. उसमें आप डिप्रेशन लगा लें, आप जो है डिवैल्यूएशन लगा लें, व्हाट्सएवर करके उस हिसाब से अपना देखें. और फिर जब आप नेट मीटरिंग कराते हैं और आपका डे वन ही पे सारे, लेट्स सपोज आइडली आई स्पीक, इफ आइडली आपका 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी. तो अब आप अपने यूनिट्स देखें, यूनिट्स कितने हैं, आपका नेट कितना आ रहा है. अगर वो नेट फिर भी आपके सरप्लस पे कर आपके लिए मीन्स के नेट आपका जो है बिल कम से कम हो रहा है और जो है आपका बिल जो है कम आ रहा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल. अगर 2 महीने के अंदर करा दिया तो जो उसने आपको कहेगा 4 साल में आपका पे बैक है, तो 4 साल 2 महीने में हो जाएगा. लेकिन जितना लेट होगा उतना काम खराब होगा. अच्छा, रिगार्डिंग ग्रीन फाइनेंस या यूनिडो प्रोजेक्ट जी, नजर प्रेजेंटेशन दे. रिगार्डिंग ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस का ये है जी कि आप पैसे ले सकते हैं बैंक से ये सिस्टम लगाने के लिए, और एक ख़ास मार्कअप होता है, आप उस पर उसको वापस कर दें. सो अगर आप देखें, या यूनिडो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली यूनिडो लगाता है प्रोजेक्ट्स जो कि ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए वो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वाला हिसाब है, SDG 7 के लिए वो कर रहे होते हैं. तो ग्रीन फाइनेंस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लगाना चाहें. और यूनिडो के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए फिर आपको कम्युनिटी बेस्ड करना पड़ेगा. तो
ऑफिस की मॉडलिटीज का मसला ये है कि मुझे सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ी करप्शन चलती है, माजरत के साथ। हमारे इदारों में थोड़ी सी होती है, हर सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो एक दो बंदे पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। लेकिन जहाँ तक है फ्यूचर में ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, स्पेशली जो रात को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, दिन को भी कर सकती है, तो बच्चे यू बेटर गो फॉर दैट थिंग इनिशियली। फिर उसमें फाइनेंसिंग मॉडल किस तरह हो सकता है, फिर उसका ग्रीन फाइनेंस, यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, या आपने आइसोलेटेड माइग्रेट के लिए लगाना शुरू कर दिया, या आप एक 70-30 की प्रोपोजिशन पे आप कहीं और लगा रहे हैं। अब 70-30 क्या होता है कि 70 बाहर से आता है, 30 आप अपना लगाते हैं, और एक थोड़ा थोड़ा जो भी आपको प्रॉफिट होता है आप दे रहे होते हैं। उस सेंस में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका पे बैक, चूंकि आपका जो 30 है वो क्विक हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है वो तकरीबन ओवरऑल जो दूसरी पार्टी है उसको तकरीबन 5 एक साल लग जाएंगे, इफ़ यू कंसिडर द इंटरेस्ट रेट एज वेल। इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट यूजुअली 12% के आसपास होते हैं। अच्छा, हाउ मच करंटली पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग थ्रू नेट मीटरिंग? अच्छा जी, अच्छा सवाल है। इसका एक सिंपल सा जवाब मैं इधर बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। अ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, किधर गया है? हाँ जी। तो जी इस वक्त जो भी सवाल पूछा जी, जो अगर कमीशन सिस्टम जो है हमारे पास 161.48 मेगावाट है, जो कि अभी तक मुझे कोई पता लगा 180 तक हो गया। ठीक है जी, 180 तक है मेगावाट, अगर हम उसको रियल फेस वैल्यू पे लें तो। यस, रिकॉर्डिंग ये इनको पता लग सकता है, इनके पास रिकॉर्डिंग होगी, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, डस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स एनी सब्सिडी फॉर नॉलर सोलर नेट मीटरिंग? वो पेंशनर को पेंशन दे दे, बड़ी बात है, नेशनल बैंक ने कहाँ से देना है? हाँ अलबत्ता अस्करी या ये बाकी कुछ बैंकों ने शुरू किया है ये फाइनेंसिंग सकते हैं। व्हाट चैलेंजेस व्हाट डू यू सी फॉर नेट मीटरिंग इफ पार्टी इज एंगेज्ड इन पीपीए? सवाल बहुत अच्छा है। चैलेंजेस जो है वो स्टेक होल्डर्स को जो चैलेंजेस होते हैं वही वाले चैलेंजेस इस नेट मीटिंग में करके आने। तो एक अच्छी डायमेंशन है इसका, मैं आपको डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन पूरे ये पढ़ने के बाद ये कुछ चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट करके ये अच्छी चीज़ें भी बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। ये दो सवाल बहुत ज़बरदस्त हैं जो कि अभी मैंने देखे हैं। वी हैव प्लान टू इंस्टॉल 150 ऑन ग्रिड सिस्टम फॉर विच आई नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक एंड फाइनेंशियल मॉडल कैलकुलेशन। कैन यू प्लीज शेयर सम data regarding it? I means guidance. Sure, why not? Why not? 185 मेरे पास जो है, मेरे पास 5 किलोवाट 10 किलोवाट इस टाइप की चीजें पड़ी हुई हैं, तो जो मेरे पास है मैं दे दूंगा, बाकी आप देख लें क्या हिसाब हो सकता है। अच्छा जी, कैन वी अप्लाई नेट मीटरिंग विदाउट बैटरीज? फर्दर कुड यू प्लीज आल्सो शेयर कॉन्टैक्ट्स और इस्लामाबाद कंसल्टेंट्स? एक तो जी कंसल्टेंट हु हेल्प इन नेट मीटरिंग फ्रॉम आइस्को। यस, नेट मीटरिंग H13 में भी बहुत से हैं, यहाँ तो अभी बहुत से अच्छे करके हैं। इसका एक चीज तो यह है कि आप ADB की वेबसाइट पे जाके एक दफा देख लें कि कौन कौन से लाइसेंस उन्होंने किस किस को दिए हैं। दूसरा स्मीडा ने भी कुछ एक अभी जिस तरह वो भाई ने शो किया था कॉन्टेक्ट्स, तो कंसल्टेंट्स तो अच्छे करके हैं, बहुत अच्छे करके हैं। अच्छा, रिगार्डिंग नेट मीटिंग उसका ये है कि वो ऑन ग्रिड होगा आपका विदाउट बैटरीज, यानी कि जो जनरेशन होगी वो उधर जा रही होगी, बैटरीज नहीं होंगी। लेकिन उसका मसला ये है कि जब वापडा जाएगी तो आपका वो सिस्टम भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसमें इशू है। तो बाकी आप अपने घर में फिर UPS लगा के रखें, दूसरा ऑप्शन ये है उसके लिए। तो ये है ऑन ग्रिड का आप कर सकते हैं विदाउट बैटरीज भी। श्योर, जब फ्रीक्वेंट ड्यू टू पावर भी, अच्छा हाँ जी, ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये प्रेजेंटेशन मैं हैंड ओवर कर दूंगा, डोंट वरी। ये मैं अपने पास नहीं रखता, है सारा आपका है। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट बैंक इज प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स। यस, स्टेट बैंक इज डूइंग दैट, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस डोमेन में दे रहा है। डोमेन भी तो देखनी है ना कि आपने वो क्या कहते हैं, आइदर वो कोई सरकारी प्रोजेक्ट है आपका ज़ाती, किस हिसाब में उसकी मॉडलिटीज़ भी आप देख लें, उसका फिर आप बाकी चीज़ें भी एडजस्ट करें। ये उसके लिए आपको तमाम चीज़ें देखें। एक चीज़ मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट कर दूं कि जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ देख रहे हो, ये जो इंसेंटिव, ये स्कीम्स, ये वो फलाना ढमकाना, तो काइंडली उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिया करें, और उसके साथ जो नीचे स्टैरिक लिखा होता है ना, सब्जेक्टेड टू मार्केट वॉलेटाइजेशन व्हाट्सोएवर,
वो चीज़ फिर बाद में बंदे को बहुत तंग करती है। मीन्स कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर आज मैं लगा रहा हूँ अपने घर पे सोलर सिस्टम, अगर कल को लेट्स सपोज 17% GST दोबारा लग जाता है, और ये अभी जस्ट कहने को है कि नहीं है, अभी भी लोग साथ लगा के दे रहे हैं उसको, ठीक है। और उसकी वजह से ये भी मसला बनना शुरू हो गया कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट पेमेंट पे काम शुरू कर दिया है, वो टैक्स हुकूमत को जाता ही नहीं है। ये भी एक इशू है बहुत बड़ा। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जो हमारे पाकिस्तान में मसले बन रहे हैं। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन काइंडली प्लीज, आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका मैं इंशाल्लाह ये इसमें कॉपी करके दे दूंगा जवाब, क्योंकि उसके बारे में मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जैक्ट ही इन्फो दूंगा, तो इस वजह से काइंडली थोड़ा सा बियर विद मी। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये मोहम्मद हारिस साहब हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनका जो माइक है वो अनम्यूट किया जाए, तो उसमें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका ये क्वेश्चन। जी जी। Thank you for that. I put that question directly in the chat box, and that was related to the parties which are engaged for the PPE agreements and the challenges they face towards the net जी जी। metering. So that was my question, and you have answered that you will provide detail on that. यस, इंशाल्लाह So इंशाल्लाह। thank you. ओके, वेलकम। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, दो तीन चीज़ें वैसे मैं आप लोगों से जस्ट गोश गुजार आपके कर दूं, कि जब भी आप नेट मीटरिंग से रिलेटेड कुछ भी कर रहे होते हैं व्हाटसोएवर, जो भी आपके पास, काइंडली अपने पास रिकॉर्ड की कुछ ज़्यादा ही कॉपीज रखा करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि रिकॉर्ड जल भी जाता है। मैं रीजंस नहीं बताना चाहता क्यों जलता है, तो आपके पास कोई ना कोई बैक एंड पे चीज़ हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब भी, लास्ट चीज़ जो मैं आपसे वो अर्ज़ करना चाहूँ कि जब भी आपने इंस्टॉल कराना हो सिस्टम, तो पहले आप पोर्टफोलियो देख लें उस बंदे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्होंने वाकई ही किधर किधर अच्छी जगहों पे वो किया है कि नहीं किया। क्योंकि कई दफ़ा जो अच्छे इंस्टॉलर होते हैं वो आपको जहमत ही नहीं उठाने देते, और कभी कभी ऐसे होता है कि आपको इतनी जहमत होती है कि आप लगा के पछता रहे होते हैं। सो काइंडली, जिसे कहते हैं ना, वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। तो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your time, and I hope all the participants receive a very useful information, as you have discussed a very authentic fact and figure. So once again, it's all from our side, and thank you to all the participants for joining this webinar. And inshallah, the presentation of this webinar will be available on our official website, and the recording of this webinar will also be available on our YouTube channel and Facebook. So for now, it's goodbye to all of you. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच जी, इट्स एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच।